Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today we will discuss another topics on relation. Now what we will discuss today in relation is what are the properties of relation, what are the operations of relation, and how do we do closure of relations. Relation is one of the most important topic from the subject discrete structures and theory of logic. Basically, the outline of today's lecture is to discuss what is a relation, which we have discussed in the previous lecture as well. We will throw some light on what is a relation, then we will discuss about the various operations of relations as well as the properties of relations, and then we will see how the closure of a relation is being done. I will discuss each and every topic with the help of an example. Now, before moving ahead, what are the operations of relation? In the last class, I have discussed about what is a relation. From the definition of relation, we have concluded that relation is basically a subset of ordered pair of A cross B. This subset can be on any condition. It may be A divide B, it may be x divide y, it may be x less than equal to y or greater than equal to y. So, what we have obtained from the last lecture, or what the learning we have from the last lecture is that from the ordered pairs that which we obtained from the Cartesian product of set A and set B, from these ordered pair there exists a subset which is called as a relation. Tick. Up. Today we will discuss about the various operations on relations. As we are aware that if we are given a set A with elements 1 and 2 and given a set B with element 3 and 4, or we all are aware that A cross B is the ordered pair. Ordered pair means 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 3 and 2 comma 4. This is basically the Cartesian product of two sets. And now, what is a relation? Relation is basically a subset of A cross B. Meaning, if relation is given to us as 1 comma 3 and 2 comma 3, then this is a subset of A cross B. अब जब हमें ये पता चला कि A सेट B सेट से हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं और रिलेशन को उसका सबसेट बोल रहे हैं. नाउ अब हमें यह देखना है कि व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ रिलेशन. सबसे पहला ऑपरेशन यूनियन. अब यूनियन की डेफिनेशन जानने से पहले हम सिर्फ एक एक एग्जांपल देखें. मान लो R1 कोई रिलेशन मुझे गिवन है 1,3 एंड 2,3 एंड अनदर इज अ रिलेशन R2 विच इज 1,4 and 2,5. Now, what is a union of this? Union will simply be R1 union R2. That is all the four possibilities, that is 1 3, 2 3, 1 4 and 2 5. Agreed? So basically यूनियन क्या है कि अगर मुझे कोई R1 रिलेशन गिवन है, R2 रिलेशन गिवन है, मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को एक साथ क्लब करके समराइज कर देना है और एक ऑर्डर्ड पेयर एक से ज्यादा बार नहीं आना है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर यहां पे है 2,4 और वही यहां पे 2,4 है, वो मुझे एक ही बार लिखने की जरूरत है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो नाउ व्हाट इज अ यूनियन? In union, we are given a relation R1 and R2. We simply denote union with the help of R1 union R2. And R1 union R2 is A comma B such that A comma B belongs to R1, union A comma B belongs to R2. Basically, जो R1 में है और R2 में उसे sum up करके एक साथ लिखना है. Now, next operation is intersection operation. Now, what is the difference between union and intersection operation? I will show you with the help of an example. If R1 is given to us as 1,3 and 2,4 and R2 is given as
1,3 and 2,5. So intersection is basically the common part of both the relations, that is 1,3 and 1,3. So we simply say that R1 intersection R2 is equal to A comma B, where A comma B belongs to R1 in intersection with A comma B belongs to R2. मतलब हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं जो रिलेशन 1 और रिलेशन 2 का कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है वो एक साथ मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा। यूनियन में जो मेरे पास R1 की ऑर्डर्ड पेयर है, जो R2 की ऑर्डर्ड पेयर है, उनको यूनियन में हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। बस इतना ध्यान देना है, एक ऑर्डर्ड पेयर एक ही बार अकर करेगा। इंटरसेक्शन में जो R1 और R2 की कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है कि मैं R1 और R2 दो रिलेशन लेके चल रहा हूं और R1 माइनस R2 देख रहा हूं, R2 माइनस R1 भी देख सकता हूं। तो R1 माइनस R2 का क्या मतलब है? रिलेशन 1 में है, रिलेशन 2 में नहीं है। एग्रीड है? रिलेशन 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन 2 में नहीं है। मतलब एग्जांपल क्या, R1 में क्या होगा 1,3, 2,4 और R2 में क्या कहना चाह रहे? रिलेशन 1 में है, रिलेशन 2 में नहीं है। मतलब यहां मान लो मैंने 2,4 लिख लिया और 2,5 लिखा, तो सिंपली मैं ये कहूंगा कि R1 माइनस R2 विल बी 1,3। मतलब इसमें ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। जो रिलेशन 1 का पार्ट रिलेशन 2 में है उसे एक्सक्लूड कर दूं, मतलब जो रिलेशन 1 का पार्ट रिलेशन 2 में एग्जिस्ट नहीं करता वो मेरा सिंपल R1 माइनस R2 होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स मेरी दोनों रिलेशंस में कॉमन है उससे एक्सक्लूड करके जो रिलेशन 1 में बची वो R1 माइनस R2 में आएगी। और अगर R2 माइनस R1 की बात करूं, जो कॉमन पेयर्स मेरी दोनों रिलेशंस में हैं उसको एक्सक्लूड करके जो पेयर्स मेरी R2 में बची वो R2 माइनस R1 में आएंगी। सिंपली मैंने क्या लिखा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू A कॉमा B, वेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इन इंटरसेक्शन विद A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। सो फ्रॉम दिस स्लाइड हमें यह पता चला व्हाट इज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। I have already discussed about composition in the previous lecture as well. So now take an example. If R1 is equal to 1,2, 2,4 and R2 is equal to 2,5 and 4,6. Now what we are saying that R1 in composition with R2 is what? इसको ऐसे समझना है कि ये A रिलेशन B है, ये B रिलेशन C है और मुझे आउटपुट क्या चाहिए? A रिलेशन C का। मतलब R1 की जो पेयर है दिस इज A, दिस इज B, तो व्हाट वी आर सर्चिंग, दिस इज B, दिस इज C। तो ये वाला पार्ट यहां पे जहां सेम है तो मैं सिंपल एक पेयर बना लूंगा 1,5 और ऐसे ही मैंने दूसरी पेयर बना ली 2,6। एग्रीड? यहां पे 4 और 4 सेम है, 2 की पेयर 6 से बन गई और 1 की पेयर 5 से बन गई। एग्रीड? नेक्स्ट इज द इनवर्स ऑपरेशन। नो व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेशन? वी आर गिवन अ रिलेशन R, इनवर्स ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय R इनवर्स। दैट इज अगर कोई मुझे रिलेशन गिवन है R1 इज इक्वल टू 1,2, 2,4, तो R इनवर्स जो होगा वो होगा 2,1 एंड 4,2। मतलब इसकी ऑर्डर्ड पेयर्स की मिरर इमेज। एग्रीड है? मतलब सिंपली 2,1 एंड 4,2 यहां पे मेरे पास रिटर्न हो रहा होगा। एग्रीड है? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने रिलेशन 1 लिया और ऑर्डर्ड पेयर्स ली, कुछ ऐसे रिलेशन 2 लिया।
अब सिंपल बात क्या हो रही है, R1 यूनियन R2 क्या होगा? मैंने क्या कहा था, जो दोनों रिलेशंस की ऑर्डर्ड पेयर है उन्हें एक साथ लिख देंगे, मतलब 1,1 आ गई, देन 1,2, एग्रीड, देन 2,1, देन 2,2, then 2,3, then 3,1, 3,2, 3,3, and then 3,4. This pair and this pair already exist twice. Agreed? If we talk about intersection, then what is a common part in this? This is a common part and 2,3 is a common part. Agreed? So, in intersection, the ordered pairs which we get is 1,2 and 2,3. Now, what is the difference between R1 minus R2? Now, R1 minus R2 is what? कि R1 में हो, R2 में ना हो. अब देखिए 1,2 यहां एग्जिस्ट करता है, 2,3 यहां एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3,4 मेरा R2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिंपली ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पे रिटर्न हुई. अगर मेरे से कोई कहता R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 तो मेरे पास बहुत सारी पेयर्स हो जाती. इस पेयर को छोड़ दूं और इस पेयर को छोड़ दूं, तो इसके अलावा मेरे पास सारी पेयर्स मेरी R2 माइनस R1 में आ जाती. अब अगर कोई कहे R1 इनवर्स, R1 इनवर्स क्या होगा? जो यहां पे गिवन है, दैट इज 2,1, 3,2 एंड 4,3. दिस इज R1 इनवर्स. नाउ R1 कंपोजिशन विद R2, मतलब सीधा सा क्या, 1,2 के साथ यहां पे मैं क्या सर्च कर रहा हूं, जो 2 से शुरू हो रहे हैं. तो 2 से शुरू होने में मुझे क्या मिला, 1,1, 1,2 एंड 1,3. अब 2,3 है, मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं कौन कौन से 3 से शुरू हो रहे हैं, तो मुझे क्या मिला, 2,1, 2,2 एंड 2,3. नेक्स्ट इज 3,4 और मेरे पास R2 में कोई भी पेयर 4 से शुरू हो ही नहीं रही है. तो सिंपली 3 pairs from this and 3 pairs from this and 0 pair from this, and we get as 6 pairs. Similarly, we can do for R2 composition R1. Now, I will discuss the properties of relations now. This is one of the most important topic of relation. Now, what is a reflexive relation? A relation R on set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R, for every A belongs to A. Please remember this part, if A comma A belongs to R for every A. मतलब सीधा सा ये है कि अगर मेरे पास कोई सेट A एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहां पे है, तो रिलेशन R के अंदर मेरे पास इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए. मतलब क्या क्या, 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4. ये वाले तो मेरे लिए मैंडेटरी हो गए, तभी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करती है, तब भी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा. सो बेसिकली मुझे क्या ध्यान रखना है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, मेरे लिए ये पार्ट मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए. तो जैसे मैं यहां देख रहा हूं 1,1, 2,2 एंड दिस इज ओके, दिस इज ओके, 3,3 एंड 4,4 एंड दिस. सो this part and this part is not A comma A belongs to R, but this is also reflexive because minimum condition क्या चाहिए मुझे, A comma A belongs to R होना चाहिए, बाकी कुछ और एग्जिस्ट करता रहे तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा. Agreed? Next is irreflexive. A relation R on set A is said to be irreflexive if A comma A does not belongs to R. ध्यान देना, मतलब ये बोला जा रहा है कि एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव तब है जब A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू एन R. मतलब ये कि अगर कोई एक सेट A गिवन है और रिलेशन में 1,2, 2,2, 3,3 एंड 1,3, देन द रिलेशन R इज नॉट इररिफ्लेक्सिव एज A comma A does not belongs to R because this condition.
एग्रीड है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब है जब उसमें सेट्स के सारे आइडेंटिटी वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, देन इट इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव कब है? जब किसी भी रिलेशन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, तो जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आई हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी पेयर A, बिलोंग्स टू R करती है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्रीड है? तो कुल मिला के क्या है, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था इसमें। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो मैं सिंपली कहता कि दिस रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। एग्रीड? नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन इज व्हाट? आई सिंपली से इफ ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होगा, तभी कोई रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एग्रीड? तो सिंपली द डेफिनेशन इज व्हाट? अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric if A, B belongs to R for B, A belongs to R. For example, let A is equal to 1, 2, 3. There are 3 elements in a set and a relation is defined as this. Now, if we talk about a symmetric or identical pair 1, 1, this is symmetric. 2, 2 is also symmetric. Now, if we have 1, 2, we must have 2, 1. Agreed? अगर हमारे पास 1, 2 है तो हमारे पास 2, 1 होना मैंडेटरी है उस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए। जैसे 2, 3 है ऐसे ही मेरे पास मैंडेटरी है 3, 2 होना, तभी ये रिलेशन मेरे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाया जाएगा। अब अगर मैं देखूं इसमें द रिलेशन R इज सिमेट्रिक एज फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू R, वी हैव अ B, A बिलोंग्स टू R, बट this relation is not reflexive because what we are missing here 3, 3. तो अगर इसी में मैं 3, 3 ऐड कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि यही रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। यहां पे 3, 3 ना होने की वजह से ये मेरा रिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ अभी सिमेट्रिक की बात हो रही है। तो सिमेट्रिक में मुझे बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर A का रिलेशन B से है तो उस ऑर्डर्ड पेयर्स मेरी B का रिलेशन A वाला भी होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है कि अगर A रिलेशन B है तो हम ये कह रहे हैं B रिलेशन A भी होना चाहिए उन ऑर्डर्ड पेयर्स में, उसके अलावा जो है ठीक है। मतलब कोई भी अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी वाली पेयर्स हैं ये हो सकती हैं, इसके अलावा अगर 1, 2 है तो 2, 1 मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर 1, 3 है तो मुझे 3, 1 चाहिए ही चाहिए। ये मेरी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर A रिलेशन B है और B रिलेशन A में सर्च कर रहा हूं और मेरे पास उसमें A इक्वल टू B होना चाहिए। एग्रीड? तो सिंपली क्या होगा, जैसे 1, 2, 3 है तो 1, 1 एंड 2, 2 ये मेरे ये ऑर्डर्ड पेयर मुझे ये बता रहे हैं कि ये रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक है। एग्रीड है? तो सिमेट्रिक समझ गया मैं, A रिलेशन B है तो B रिलेशन A होना जरूरी है। एंटी सिमेट्रिक मतलब A रिलेशन B है तो B रिलेशन A होगा ही होगा, लेकिन इसमें A और B बराबर होने चाहिए। और एसिमेट्रिक क्या है? अ रिलेशन R on set A is said to be a symmetric relation if for every A, B belongs to R implies that B, A does not belongs to R। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर 1, 2 है तो उसके अंदर 2, 1 नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमेट्रिक मतलब अगर 1, 2 है तो 2, 1 चाहिए ही चाहिए, आइडेंटिटी वाले पार्ट हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर 1, 2 है तो 2, 1 होने से कुछ नहीं होना, मतलब मुझे क्या चाहिए कि A और B दोनों बराबर चाहिए। फिर से ध्यान दें, जैसे सिमेट्रिक मतलब A रिलेशन B इक्वल टू B रिलेशन A, इसमें A और B बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक में A और B का बराबर होना मैंडेटरी है। और असिमेट्रिक में
अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए नहीं होना चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 उस ऑर्डर्ड पेयर्स में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। अब देखो हमने रिफ्लेक्सिव देखा, ए बिलोंग्स टू आर, एग्रीड। इररिफ्लेक्सिव देखा, इसके बाद मैंने सिमेट्रिक देखा, ए रिलेशन बी रिलेशन ए। एंटीसिमेट्रिक देखा, ए रिलेशन बी रिलेशन ए, लेकिन ए और बी बराबर होने चाहिए। उसके बाद असिमेट्रिक देखा, ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए नहीं होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ओनली ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर किसी रिलेशन में R1 में 1,2 है और R2 में 2,3 है, तभी मैं ये कहूंगा कि किसी रिलेशन में 1,3 होगा, क्योंकि क्या A, B बिलोंग्स टू R है एंड देन B, C बिलोंग्स टू R है, तभी A, C बिलोंग्स टू R होगा। तो मैं यहां सिंपली क्या कह रहा हूं, एक सेट A है 1, 2, 3 रिलेशन R, अगर 1,2 गिवन है तो 1,2 का 2,1 मुझे यहां दिखा, तो 1 का 2 से A रिलेशन B, इसका B रिलेशन C, तो मुझे नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? 1 का C वाला पार्ट, मतलब 1 का 1 वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। एग्रीड? ये मेरी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 2,2 दैट इज आइडेंटिटी पार्ट, देयर इज नो इश्यू विद दैट। एग्रीड ना? तो अभी जैसे मैं अगर इसको देखूं 1,2 या 2,2, 1 का 2 से 2 मैच हुआ, तब भी मेरा 1,2 ही रिटर्न होगा, जो कि मेरा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर मैं ऐसे देख लूं 2,1 है, यहां 1,1 है, तो 2,1 1 से 1 देखा तो रिटर्न तो मेरा 2,1 ही हो रहा होगा, जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर मेरी ट्रांजिटिव में एग्जिस्ट करेंगी वो ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी से कंक्लूड कर रही होंगी ए रिलेशन सी। ये कंडीशन वहां सेटिस्फाई होनी जरूरी है। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कह रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन I on a set A is reflexive, transitive and symmetric. So identity relation I is a equivalence relation. Basically equivalence relation है क्या? Equivalence relation वो relation है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। एग्रीड? मतलब जो भी पेयर्स मैंने ली हैं उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन सिंपली क्या है? जो मेरा सेट है उसके सारी पॉसिबिलिटीज को मैं आइडेंटिटी रिलेशन कह रहा हूं यहां पे। अब सिंपली अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने अगर एक एक करके यहां पे चीजों को देखते हैं तो सिंपली मैंने यहां क्या देखा? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, कोई एक सेट है उसके सारे आइडेंटिटी वाली पॉसिबिलिटी लिख लो A, वाली, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट करता तब भी वो रिफ्लेक्सिव है। इररिफ्लेक्सिव क्या है कि जो भी सेट से आपने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन लिखा, जो भी रिलेशन आपने लिखा उसमें A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसके बाद सिमेट्रिक, मतलब अगर A रिलेशन B है तो B रिलेशन A होना मैंडेटरी है, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपने रिलेशन में लिखी होंगी। एंटीसिमेट्रिक मतलब A रिलेशन B है तो B रिलेशन A तो होगा ही होगा, लेकिन A इक्वल टू B होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या था? A इक्वल टू B हो या A इक्वल टू B ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीसिमेट्रिक में क्या? मैंडेटरी है A इक्वल टू B होना। असिमेट्रिक क्या है कि A रिलेशन B है, B रिलेशन A नहीं होना चाहिए, और एक कंडीशन और A नॉट इक्वल टू B, ये कंडीशन भी होगी। मतलब दो कंडीशन है, A रिलेशन B है तो B रिलेशन A नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन A नॉट इक्वल टू B भी होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव मतलब क्या? A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तभी तो A का रिलेशन C से होगा। एग्रीड? उसी चीज को मैं ट्रांजिटिव कह रहा हूं। मतलब कोई एक सेट A है, उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद मैंने रिलेशन जो लिखा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने वहां पे लिखी, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में
ए का बी से, बी का सी से, विल रिटर्न ए का सी से, तो उसके बाद सारी ऑर्डर्ड पेयर इस चीज को फॉलो कर रही होंगी, तभी मैं उसे ट्रांजिटिव कह रहा हूंगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मेरा क्या होता है, जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो, उसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहता हूं। आइडेंटिटी मतलब सेम इमेज, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अब ये देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक सेट गिवन है और उसका कुछ रिलेशन गिवन है, तो गिवन रिलेशन को, जो कि मेरे पास सारी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आई है सेट के हिसाब से, उस रिलेशन को मैं कैसे रिफ्लेक्सिव बनाऊं, कैसे ट्रांजिटिव बनाऊं और कैसे सिमेट्रिक बनाऊं। मतलब इस चीज को हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास किसी एक सेट ए के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट हुई, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ एक रिलेशन डिफाइन हुआ किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, उस रिलेशन के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि वो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, देन हाउ टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, देन हाउ टू मेक इट सिमेट्रिक। अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है, देन हाउ टू मेक इट ट्रांजिटिव। एग्रीड? सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजर ऑफ रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव क्लोजर का क्या मतलब है कि मेरे पास एक कोई रिलेशन गिवन है, मुझे उससे रिफ्लेक्सिव बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया कोई भी रिलेशन हो, कितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो, उसमें मुझे आइडेंटिटी वाली पेयर्स चाहिए ही चाहिए। मतलब आइडेंटिटी पेयर्स आर मैंडेटरी। तो हमें क्या करना होगा कि वी सिंपली, इफ डेल इज इक्वल टू A comma A belongs to A is a diagonal or identity relation on set A, then the reflexive closure of relation R on set A is R union identity relation. Agreed? Whatever the relation is given to us, we simply make the union of that relation with the help of identity relation. Agreed है? मतलब हम उस रिलेशन का यूनियन परफॉर्म कर लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के साथ, तभी मेरा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो जाएगा। अब सिमेट्रिक क्लोजर की बात करते हैं। अगर कोई रिलेशन आर गिवन है सेट ए पे और आर इनवर्स जो है उसका जस्ट अपोजिट रिलेशन है, मतलब मैं इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था 1,2 अगर है तो उसको 2,1 लिख दो, मिरर इमेज। एग्रीड? तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से। तो भैया अगर मुझे कोई रिलेशन गिवन है तो मुझे उसको सिमेट्रिक बनाना है, तो मैं सिंपली आर का यूनियन आर इनवर्स से करूंगा। एग्रीड है? अब आर का यूनियन आर इनवर्स से करूंगा तो मेरे पास सिंपली चीजें कैलकुलेट होके आ जाएंगी कि व्हाट इज सिमेट्रिक क्लोजर। अब ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है? ट्रांजिटिव क्लोजर में मैं यहां पे सिंपली कंपोजिशन का रोल प्ले होगा, आर प्लस या आर स्टार इज इक्वल टू आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब, और ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे या तो फाई ना मिल जाए और या वापस वही रिलेशन ना मिल जाए जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के एग्जांपल बचे हैं। पहला एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई सेट में KLM एलिमेंट्स हैं और ये मैंने रिलेशन लिख दिया ये, अब मुझे इसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर करना है। अब देखें K, है और यहां पे L, और M, मिसिंग है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यूनियन कर लूंगा आइडेंटिटी रिलेशन से और मेरा रिजल्टेंट रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, रिलेशन का यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन से करना है। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या होगा यहां पे, K, L, L और M, सिंपली इसके साथ यूनियन करा, मेरे पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब सिमेट्रिक को अगर मैं देख रहा हूं तो सिमेट्रिक में मैंने क्या करा, ये मेरे पास एक कोई सेट A है और ये रिलेशन मुझे गिवन है। सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा, जस्ट उसका इनवर्स निकाल लेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या हुआ होगा, 5,4, 5,5 एज इट इज रहा होगा, ऐसे ही 6,5,
ऐसे ही 7,6, ऐसे ही 4,7, ऐसे ही 7,7 और दोनों का यूनियन करा होगा तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया होगा। अब सिर्फ लास्ट एग्जांपल मेरा बचता है जो कि ट्रांजिटिव क्लोजर पे है। अगर ये कोई रिलेशन मुझे गिवन है और सेट ये है तो ट्रांजिटिव क्लोजर में मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आर स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। दिस इज अ रिलेशन आर। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आर प्लस जो हो वो आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब अप टू जो भी है यहां पे, या तो आर रिटर्न हो या फाई। एग्रीड? तो आर अगर रिटर्न होने के बारे में बात करें तो आर स्क्वायर क्या होगा? आर कंपोजिशन आर। तो आर कंपोजिशन आर जो हुआ 1,2, 2,3, 3,1 और इसी को मैं अगर कंपोजिशन में लिखूं 1,2, 2,3, 3,1 और यहां से आ गया मेरा 1,2 है तो 2,3 से क्या हुआ? 1,3। अगर इसको देखते हैं 2,3 से क्या हुआ? 3 से 2,1 और 3,1 से क्या हुआ? 3,2। एग्रीड? ये मेरा आर स्क्वायर आया। फिर मैंने आर क्यूब निकाला आर स्क्वायर कंपोजिशन आर से, ये मेरा आर क्यूब आया। फिर मैंने R4 निकाला आर क्यूब कंपोजिशन आर से, ये इक्वल टू आर आ गया। और जैसे ही वो इक्वल टू आर आ जाए उसके बाद मैं ट्रांजिटिव में मैं इन सब का यूनियन एक साथ परफॉर्म करके यहां पे सिंपली लिख दूंगा। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।